as we were discussing about the process of academic writing yesterday, process of academic writing. And in that process, we talked about four main steps. One was pre-drafting, then there is draft. So in pre-drafting, we talked about yes, but there was this introduction that we need to plan ahead. First thing was planning. Then we need to do research, and then we shall do the brainstorm. So these were the essential parts of pre-drafting. So there was planning, then research, and brainstorm. And in drafting, which is nothing but writing, So in this, I talked about it yesterday, and we shall look for headings and subheadings. These headings and subheadings will be used to basically form an outline. And this outline will become the blueprint. This outline will become the blueprint to do the actual writing or drafting. It will be our map. It will be the guide. Okay, so how do we actually do it? So I told you earlier that heading is how do we use the heading? We talked about it. Heading is, so I will today focus on drafting, editing, and revising. All three. Drafting, editing, revising. So first of all, what are headings and subheadings or a subheading? So normally speaking, heading is a short phrase. Normally it is a short phrase in group of words. So short phrase or a small group of words which indicates what the paragraph is about. So that will be heading. Heading can also mean title of something. Heading can also mean a title. And for short documents, for short paragraphs or short writing, piece of writing, we don't actually need headings. But when the writing is lengthy, when it has many aspects or many point of views, then we break it up into smaller units or smaller sections. Those sections may contain a title or a heading. Now, use of heading is very crucial because it helps us to segregate the information into parts, and those parts should be arranged according to their order of importance, order of occurrence, chronological order, in whatever you like your writing to be. Order of importance means we will arrange them first of all the most important one, then the less important one, then the least important. Or chronological order means how the event happened, and things that happened first, then things that happened second, then things that happened third. Or we can also arrange them in any way according to the theme of the headings. Basically are the segregation of information according to the theme or any criteria that we choose to be. Like the criteria could be chronology,
criteria could be, as I told you, it could be based on any, your research topic will actually define the theme or basic idea that you wish to convey with your writing. And we should avoid choosing the long headings. Normally we don't use long headings, we use only short phrases. And the important words in a heading are written with capital letters. First letter is capital, like we use the type when we write those titles. I told you, like the Merchant of Venice, then M should be capital, and important words should start with a capital. So the style that we use for titles can also be used for headings. And these headings help the writer to organize his ideas. Practically, the word outline is organization. The word outline means organization, and organization of the content will be done with the help of headings and subheadings. Subheadings basically organize the writing, and they make the writing easy to understand. I mean, you can look at a heading and its subheadings, and you will be able to get a basic idea what the writing or paragraph or an essay is all about. Subheadings keep the writer on the right track. These subheadings are actually parts of the main topic. Suppose the topic is complex, it has further parts or some parts, then we use those subheadings to indicate those subparts. Further portions could be there of a particular topic. And we should keep in mind that like headings, these subheadings should also be short phrases. Long sentences are to be avoided. Because if they are long, they may make the writing boring. And readers' interest will fail. So after headings and subheadings have been framed or written, there is development of idea. Next there is development of idea. Now how do we develop the idea? How do we develop it? We start writing content against each heading, either against or within each heading. The writing will be arranged according to the outline frame. And each paragraph should have, ideally it should have one idea. So development of idea is when we start making paragraphs. Development of idea will directly lead to paragraphs which will be written according to the heading or subheading already proposed in the outline. आउटलाइन बनाते हुए जो भी हेडिंग सब हेडिंग हम बना लेंगे, उस कंटेंट मैटर को लिखना शुरू कर देगा राइटर उन हेडिंग सब हेडिंग के अकॉर्डिंग. तो क्या लिख रहा है बेसिकली वो पैराग्राफ्स. Ideally, I said each paragraph should have one idea. Ideally, आदर्श जो पैराग्राफ होगा उसमें होना चाहिए one idea या concept. Concept होता है विचार, ठीक है. And the sentences should flow easily. One sentence should appear that one sentence naturally leads to another sentence. There should not be any repetition or redundancy.
because we have actually done these things before, that academic writing should be clear, it should be concise, it should be this, it should be that. So all these factors will now come into play, और we will use those as our guiding principles. अभी तो हमने बात की थी effective principles क्या है? Principles माने सिद्धांत. सिद्धांत का यूज कहाँ करेंगे? While we actually draft paragraphs. Essentially तो paragraphs ही लिखने हैं ना. हर एक सेंटेंस में एक thought will be connected with the second thought, meaning there should be natural flow according that particular heading. That concerned information will be given that particular paragraph. Suppose heading is this, and you will write only the relevant information with respect to this. Outline will give you that map. Okay. So heading should reflect the spirit of the piece of writing. Important words in a heading should begin with capital letters, that I have already told you. Yes. Okay, keep in mind that headings, as I discussed it earlier, headings and subheadings both are like the guide or map to your writing. These will direct you what you have to write. Okay, and each paragraph must deal with one topic or idea, and there should not be any mention of any other topic irrelevant, which is not relevant to that. And each sentence should ideally deal with one thought. So the sentence will deal with one thought, and paragraph should deal with one idea or concept. So we need to follow the principle of unity. Principle of unity. For this, I must give you an example. So example would be like, suppose you think of a garland. माला के बारे में सोच है ना. माला के अंदर धागा रहता है और धागे के अराउंड बीड्स होती हैं या फूल होते हैं, है ना. तो उसमें देखो यूनिटी, कुछ हमने ओवरऑल एक डिजाइन सोचा होता है जो हमें माला का चाहिए, ओवरऑल डिजाइन. तो बीच में जैसे बड़े फूल लगा देंगे, यहाँ पे थोड़े छोटे वाले फूल लगा देंगे, डिजाइनिंग का एलिमेंट करना. तो यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ पे भी अगर छोटे वाले फूल हैं तो यहाँ पे छोटे वाले, यहाँ पे अगर बड़े वाले फूल हैं तो यहाँ पे बड़े. बिग पिक्चर देखेंगे तो वी आर ट्राइंग टू मेक अ गार्लैंड, हमें माला बनानी है, वो सारे उसके एलिमेंट हैं. समझ रहे हैं? तो हमें पीस ऑफ राइटिंग लिखना है कि हमें क्या कन्वे करना है, और अगर इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है देन वी नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स. एनालिसिस, एनालिटिकल राइटिंग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. अगर पार्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो पार्ट्स के हमने हर एक को टाइटल दे दिया शॉर्ट फ्रेजेस के जरिए, वो क्या बन जाएंगे? हेडिंग, सब हेडिंग. और उनको जब एक्सप्लेन करेंगे ईच हेडिंग सब हेडिंग के आगे इंफॉर्मेशन आती जाएगी. नॉर्मली तो सब हेडिंग्स के आगे पैराग्राफ बनना है ना. हेडिंग के आगे ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स. जैसे एकेडमिक राइटिंग, थोड़ा सा पहले लिख दिया इंट्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, हेडिंग टाइप्स में फिर सब हेडिंग्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर हर एक को एक्सप्लेन करते हैं. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, पर्सुएसिव राइटिंग, एनालिटिकल राइटिंग, क्रिटिकल राइटिंग. तो वो भी तो हेडिंग, सब हेडिंग ही है ना. तो उस तरह से हमने चला. ये सब ड्राफ्टिंग का हिस्सा है. माने हमेशा ड्राफ्ट करने से पहले हेडिंग, सब हेडिंग बनाए. और अगर आप थोड़ा सा उसको गहराई से सोचें, अरे हेडिंग, सब हेडिंग मींस नोट्स. नोट्स में भी क्या करते थे? शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिख लेते थे पॉइंट वाइज. उसमें भी तो हेडिंग, सब हेडिंग ही बनते थे. समरी पढ़ते थे, फिर उसके पॉइंट्स बना लेते थे. कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट टेकिंग में हमने किया हुआ लिसनिंग स्किल. तो अल्टीमेटली क्या करने आएगा? हेडिंग, सब हेडिंग. और हेडिंग, सब हेडिंग को यानी कि की इंफॉर्मेशन को, कीवर्ड्स को जब हम थीमेटिकली अरेंज कर लेंगे तो वो आउटलाइन बन जाएगी. इजी एज दैट. एजेंडा में भी हम कीवर्ड्स को लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, पहला कौन सा डिस्कस करना, दूसरा कौन सा करना. तो वो भी एक तरह से क्या है. तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप देखोगे इट विल कम इन हैंडी इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन पर्टेनिंग टू एकेडमिक. फिर देखो और क्या कर सकते हो.
अब हेडिंग सब हेडिंग के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं, तो जो पुराने वाला सिस्टम होता था उसमें शायद एबीसी हम यूज कर लेते थे और रोमन न्यूमरल यूज कर लेते थे। जैसे ए आ जाएगा मेन हेडिंग, फिर 1 2 3 सब हेडिंग, और सब के भी सब बनाने थे तो शायद रोमन न्यूमरल, कुछ ऐसा पुराना सिस्टम। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ नए की, क्योंकि वो नया है, लेटेस्ट है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में मेन हेडिंग को हम न्यूमरल से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं मेरे पास पहले नंबर पे आ गई इंट्रोडक्शन लिखनी है, दूसरे नंबर पे हेडिंग आ गया सपोज करो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो 2.1 इसका सब हेडिंग पहले लेवल का फर्स्ट लेवल सब हेडिंग। 2.1 में आ गया सपोज करो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। 2.2 स्टेजेस, कुछ और बना लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के साथ क्या चल सकता है, हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर पोज कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर और सब हेडिंग है, इसके अंदर माने कि हमें और डेटा देना था, तो 2.2.1 सेकंड लेवल, थर्ड लेवल हेडिंग आ गया, मतलब इसका सब पार्ट है ये, तो 2.2 तो लेना ही है, 0.1 इसका भी सब पार्ट बनाना है, 2.2.1, इसके दो बनाने हैं, 2.2.1.2। डेसिमल सिस्टम समझा रहा, हेडिंग सब हेडिंग लिखने के डेसिमल सिस्टम, ठीक है। कुछ बात समझ में क्या कर रहे हैं, हेडिंग सब हेडिंग, ये है मेन हेडिंग, तो एक का सब बनाना होगा, नेक्स्ट लेवल क्या होगा 1.1 माने इसका एक हिस्सा, जैसे सपोज करो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने लिख दिया फ्री, ऐसे एक हेडिंग देना, ये हेडिंग से देना, ये सब हेडिंग बन गया इसका। इंट्रोडक्शन के अंदर मेरे पास एक और चीज थी कंप्यूटर डेफिनेशन, सपोज कर लेते हैं इस कंप्यूटर के अंदर मेरे पास एक और चीज थी, तो इसका सब बनाना है, तो 1.2 तो है, इसका जो पार्ट बनाना है वो डॉट बनाना है। ये लेटेस्ट टेक्निक आपको मिलेगी हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है। वो पुराना एबीसी लिखते थे या रोमन न्यूमरल लिखते थे, वो भी हेडिंग सब हेडिंग लिखे, ठीक, दिस इज इजियर, समझ गए बात। और ये जो मैं लिख रहा था अभी, ये बन रही थी आउटलाइन, आउटलाइन टू इंडिकेट ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ योर राइट, ठीक। जैसे मान लो मैंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे आपने जो राइटिंग स्किल्स किए थे ना फर्स्ट ईयर, पता नहीं कैसे किए आपने, नहीं की, उसमें नोट मेकिंग समराइजिंग आता था, उसमें भी ऐसा लिखते थे हम कि समरी को पढ़ के, समरी को पढ़ने के बाद उसके हेडिंग सब हेडिंग यानी कि नोट्स बना देते थे, उन नोट्स को बनाने में भी हम ऐसी चीजें यूज करते हैं। अब सपोज करो मैंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर या कोविड के ऊपर लिखा, तो पहले तो मैं लिखूंगा कोविड-19 है क्या, अब कोविड-19 के बारे में जब लिखना पड़ेगा तो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, हिस्ट्री लिख रहा हूं, इफेक्ट्स लिख रहा हूं, फिर दूसरे में कोविड-19 इफेक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन इंडिया, 2.1 2.2 क्या कर रहे हैं, ये मेरी राइटिंग को डायरेक्शन दे रहा है कि जब मैंने लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले कोविड-19 की डेफिनेशन आएगी, उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखूंगा, उसके बाद उसके इफेक्ट्स लिखूंगा। इफेक्ट्स के अंदर मान लो और टाइप्स हमें करने हैं कि कैसे कैसे इफेक्ट, एक ही टाइप के इफेक्ट नहीं, 3 टाइप के इफेक्ट, 1.3.1 है ना, इसमें जैसे सपोज करो फिजिकल इफेक्ट,
1.3.2 मेडिकल इफेक्ट 1.3.3। तो ये जब हम आउटलाइन बना रहे हैं यही डायरेक्शन दे रहा है कि हमें जब पैराग्राफ लिखना है तो इफेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगले पैराग्राफ में फिजिकल इफेक्ट, उसके अगले वाले में मेडिकल इफेक्ट। तो ये पैराग्राफ ये सॉरी हेडिंग सब हेडिंग बनाना है की काम इंपॉर्टेंट काम। एक बार जब आपका ब्लूप्रिंट बन गया कि ऐसे चलना है तो इंफॉर्मेशन जो आपके पास होगी कलेक्ट की हुई होगी उसको सिर्फ आपने खाली अरेंजमेंट देना है, एक क्रम देना है, एक ऑर्डर देना है। हाँ ये जब इनको डिजाइन कर रहे हैं हेडिंग सब हेडिंग को तभी हमारे दिमाग में क्लियर आना चाहिए कि मैंने पहले डेफिनेशन देनी है कि पहले हिस्ट्री देनी है, इफेक्ट कहीं लास्ट में तो नहीं देने। यही चीज अरेंज करने में मेरा बेसिकली स्किल है। ये हमें करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर थीम, क्या है हमारा टॉपिक, उसमें क्या सबसे पहले हिस्ट्री डिफाइन करना जरूरी है या इसको डिफाइन करना जरूरी है, दैट विल गो विद योर थीम। क्लियर है बात इतनी? ये सारा किसका प्रोसेस का हिस्सा हो गया, ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, अक्सर जब हम कोई चीज लिख लेते हैं तो उसके बाद क्या करनी पड़ती है, करेक्शंस, है ना। तो पहले आ जाएगा रिवाइजिंग, थर्ड जो पोर्शन है इसका दैट इज रिवाइजिंग। और रिवाइजिंग के अंदर क्या करना है, मेकिंग चेंजेस, करेक्शन, रीराइटिंग। रिवाइजिंग बेसिकली क्या क्या करेंगे, पहले हम करेंगे मेकिंग चेंजेस। एक बार लिख के चीज फाइनल नहीं होगी, इट विल कॉल फॉर करेक्शंस, रिवीजन। रिवीजन विल कम आफ्टर यू रीड इट एंड इट डजंट मेक दैट इम्पैक्ट दैट यू want. And to create that impact or effect that you wanted, you will make changes, you will improve the logic, you will add arguments, organize your arguments if they are already there, and you can change the sentence structure that will come and make changes. माने grammatical changes, linguistic changes, आगे ना अपने आप ही सब हेडिंग, making changes first, second, and organization of argument, organization of arguments, इसको रीऑर्डरिंग भी बोलते हैं। कई बार क्या रहता है कि आर्ग्यूमेंट तो लिखे हैं लेकिन रीऑर्डर करने की जरूरत पड़ रही है। और इसका हमारा मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, टू मेक अवर राइटिंग क्लियर एंड कंसाइज, आर्ग्यूमेंटेड, पर्सुएसिव है तो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स पर्सुएशन की तरफ ले जा रहे हैं कि नहीं, ये चीजें याद करें। और क्या करेंगे, करेक्शंस करेंगे, करेक्टिंग मेकिंग चेंजेस एंड करेक्टिंग। करेक्शन में क्या करेंगे, फॉल्ट ठीक करेंगे, ढूंढेंगे फॉल्ट, ठीक करेंगे, एरर या डिफेक्ट को हटाएंगे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर टेक्स्ट हमें लग रहा है कि कोई वर्ड मिसलीड कर रहा है या कोई पैराग्राफ या कोई लाइन मिसलीड कर रही है तो उसको करेक्ट करेंगे। इसमें ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, इन सब के एरर को हटाना। इसमें नॉर्मली ये सलाह दी जाती है, इट इज एडवाइज्ड दैट राइटर शुड कंसल्ट अदर पीपल टू गेट हिज वर्क इवैल्यूएटेड, because it's very difficult to find own errors. Things that you have written, you won't be able to find any error, you won't be able to spot them, but a fresh set of eyes will help you find your errors more efficiently, right? And then जब सब चीजें ठीक कर दी, करेक्शंस चेंजेस कर दिए, करेक्शंस कर दिए, फिर क्या करोगे, रीराइटिंग, फिर लिखोगे। ये बात बार बार करनी पड़ती है, राइट, रीड, रीराइट। रीराइटिंग, रीराइटिंग माने
इसमें रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट। जब भी हम पहला ड्राफ्ट लिखते हैं ना उसमें गलतियां रह जाती है, फिर जब उसको दोबारा लिखेंगे तो आप क्या लिख रहे हैं, सेकंड ड्राफ्ट। जरूरी नहीं है सेकंड वाला फाइनल हो जाएगा, no? आपने फिर वही प्रोसेस लिखने वाला, आउटलाइन, शायद हो सकता है आउटलाइन एडजस्ट करनी पड़े, चैप्टर्स आगे पीछे करने पड़े। एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ बिकॉज वी आर इन द रिवीजन फेज, वी आर रिवाइजिंग इट। और रीराइट करते हुए जब सेकंड ड्राफ्ट हो रहा है, फिर से राइटिंग हुई, फिर से रिवीजन हुआ, तो इसमें भी हम लोग बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेक नेसेसरी चेंज, करेक्शन, रीराइट करेंगे और फिर हम अपने आइडियाज को पेपर पे उतारेंगे, फिर से राइटिंग होगी, नए आइडियाज माइंड कम इनटू आवर माइंड, और फिर अगर हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा उसको फिर मेकिंग चेंजेस, करेक्शन, रीराइटिंग, ये चलता रहेगा। कब तक? यस, तब तक क्या ना बन जाए फाइनल ड्राफ्ट, उसको बोलते हैं जो तैयार हो जाता है फाइनल ड्राफ्ट। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे आइडियाज डल गए हैं, जिस ऑर्डर में आपने डालने थे डल गए, जो आप इफेक्ट चाहते थे वो हो गया। इट इज ऑलमोस्ट रेडी बट स्टिल इट वोंट बी पब्लिश्ड, इट वोंट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि इससे पहले क्या होनी है, एडिटिंग। आपने अपनी तरफ से ओके कर दिया, जो लिखना था लिख दिया, जो आइडियाज थे आगे, कुछ नहीं बचा, जिस ऑर्डर में आप चाहते थे उस ऑर्डर में आपने लिख दिया, मतलब राइटिंग वाला पोर्शन ओवर हो गया, तो उसको बोल देते हैं फिर फाइनल ड्राफ्ट। इट कुड बी योर सेकंड ड्राफ्ट, इट कुड बी योर थर्ड ड्राफ्ट, इट कुड बी योर फोर्थ ड्राफ्ट। नॉर्मली थर्ड फोर्थ ड्राफ्ट फाइनल हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली मैं पीएचडी की या एमफिल की रिजर्वेशन की उस तरह से बात कर रहा हूँ, उस एंगल से। रिसर्च पेपर में लिखने लगते हैं ना तो पहली बार में ओके हो पाता है, फिर क्या करेंगे, एडिटिंग माने रिवाइजिंग और रिव्यूइंग भी क्या है इसमें। एडिटिंग बेसिकली क्या है, रिवाइज, रिव्यू द फाइनल ड्राफ्ट। क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में बार बार बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, लीगल इश्यूज इसमें रहते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी एरर, नो प्लेस फॉर एरर, आइदर ग्रामेटिकल और फैक्चुअल, नो एरर। तो उसको एरर फ्री करने के लिए की जाती है एडिटिंग। एंड मिस्टेक शुड बी करेक्टेड। पैराग्राफ्स की ट्रांजिशन चेक करते हैं कि आइडिया फ्लो कर रहा है कि नहीं, और इसमें कंटेंट, ओवरऑल स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, क्लैरिटी, स्टाइल, टोन, करेक्ट यूज ऑफ मैकेनिक्स, स्पेलिंग, सारी चीजें करनी। जब क्या कर रहे होंगे, रिव्यू और रिवाइज, सारी चीजें करनी। क्या क्या चीजें चेक होगी आप लिख सकते हैं, कंटेंट भी चेक हो गया, देन overall structure, then sentence structure and language। तीसरा यहां पर लिख रहा हूं, sentence structure and language, clarity की बातें आपकी क्लियर हैं, समझ आ रही है कि नहीं, जार्गन तो नहीं है, वो सारी चीजें। स्टाइल, यहां लिखो, स्टाइल भी चेक करना है। स्टाइल में बेसिकली हम क्या लिखेंगे, टोन। स्टाइल में क्या बात आ जाएगी, टोन ऑफ राइटिंग, कि पर्सुएसिव है, क्रिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, उस तरह से जा रही है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती है ऑन द सब्जेक्ट मैटर, ऑन द टॉपिक दैट यू एक्चुअली सेलेक्टेड फॉर राइटिंग। किस तरह का टॉपिक आप लेके चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम जनरल चीजें पढ़ रहे हैं कि हमें क्या चीज चेक करना है। फिर मैकेनिक्स में यानी कि हमारे पास पंक्चुएशन,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, होमोनिम्स, वर्ब एग्रीमेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, फिर हमारे पास पंक्चुएशन आ गई, ये सब स्पेलिंग्स, जैसे मिसस्पेल्ड वर्ड ना हो, कोई कहीं नाउन लगना है आपने एडजेक्टिव लगा दी, छोटी वो सारी यहाँ चेक होगी सारी। क्लियर होगी बात? अब एडिटिंग जो प्रोफेशनली एडिटिंग की जाती है, दिस इज एडिटिंग, प्रोफेशनल एडिटिंग जो की जाती है उसमें क्या क्या करते हैं बोलो। और ये एडिटर्स आपको मिलेंगे कहाँ? पब्लिशिंग हाउसेस में, जहां पे पब्लिश होने से पहले रुक जाती है। तो वहां पे चीफ एडिटर, आपने नाम सुना होगा, चीफ एडिटर मतलब संपादक, संपादन। अच्छा, सब एडिटर होते हैं, माने कि जो जैसे न्यूज, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूज पेपर्स का, मैगजीन्स का, तो आप लोग आर्टिकल सबमिट कर देते हो या न्यूज जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो अपनी खबरें भेजते हैं, और वो हाफ हेजर्डली टाइप होती हैं, कोई बार वोकल वर्बली आती है, आपने टाइप करवानी है, या उन्होंने टाइप करके भेजी है, फीड आती है, उसमें बस क्रूड जैसी इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये हो गया, यहाँ हो गया, ऐसा हो गया। सब एडिटर उसको ऑर्गेनाइज करता है, सब एडिटर उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो सब एडिटर उसको ऑर्गेनाइज करता है, कांट करता है, करेक्शंस करता है। वो जो करेक्शन करना है तो उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें उसमें मार्क्स, निशान लगाता है। ग्रुप्स में, टीम्स में काम करते हैं ना वो, तो एक बंदा उसमें निशान लगाएगा, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडर। पहले होते थे, अब तो चलो कंप्यूटर ये काम कर रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए जो ये ग्रामर चेक कर लेते हैं, लैंग्वेज चेक कर लेते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए ना। ऑनलाइन आप भी अगर लिखते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लेता है, गूगल ही कर रहा है। तो इसके लिए कौन होते हैं पहले, अभी भी होते हैं बड़े बड़े ऑफिस में, क्या बोलता है वो बंदे को? प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडिंग करेगा और उसका काम होगा प्रूफ रीडिंग। क्या करेगा वो? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि वो उस लिखी हुई चीज को पढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मली पहले आती थी टाइप की, तो टाइपराइटर से जब वो निकल के आती थी तो टाइपराइटर तो गलतियां ठीक नहीं करता, टाइपराइटर में तो पर्सन विल टाइप एवरीथिंग and that will be the result. It will be given a typed letter or a typed email or typed whatever, and that typed thing will be checked for errors. टाइपिस्ट के बाद आ जाएगा प्रूफ रीडर के पास, और प्रूफ रीडर क्या करेगा? वो उस टेक्स्ट को पढ़ के उसके ऊपर मार्किंग करेगा कि क्या गलतियां हैं। यू कैन लुक एट द मिस्टेक्स। ओके, ये बुक में दे रखे हैं, चार्ट बनाया हुआ, मिस्टेक्स ढूंढनी है, सिंबल लगाते हैं इसके। क्या लगाएंगे? सिंबल। जैसे यहां सेंटेंस दिया है, राम वॉचेस हिज टीवी, ऑल द टाइम, अननेसेसरी वर्ड है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है, जो वर्ड अननेसेसरी होता है उसके लिए क्या सिंबल लगाना है। प्रूफ रीडर कर रहा है, तो वो पेंसिल से या पेन से फटाफट पढ़ता जाएगा। अब ये चीजें क्या हो रही है? प्रूफ रीडिंग पार्ट ऑफ एडिटिंग। तो टोटल कितने पार्ट करने हैं हमें? 3 चीजें करते हैं, रिमूविंग एरर, प्रूफ रीडिंग। मैं बात कर रहा हूं एडिटिंग प्रोफेशनल लेवल पे जो की जाती थी कुछ टाइम पहले, अभी भी होती है बट अब उसका ट्रेंड थोड़ा कम हो, क्योंकि अब कंप्यूटर में टाइप नहीं करते। पहले टाइपराइटर पे कर रहा था तो कागज आ गया उसके पास, टाइप होके उसने गलतियां निकाली, दोबारा टाइप करवाएगा या उसको फिर आगे फाइन
फाइनलाइज कर लेंगे, ड्राफ्टिंग हो गई। अब होता है कंप्यूटर में टाइप, एक तो वो गलती होने नहीं देता, स्पेल चेक तो वही कर लेता है, ग्रामर की पहले आपको अंडरलाइन कर करके दे देगा, तो आप साथ साथ में प्रूफ रीडिंग कर दो। प्रूफ रीडिंग कंप्यूटर ही कर रहा है ना, लेकिन जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है उसके बारे में बता। तो ट्रेडिशनली क्या किया जाता था, टाइप पेपर के ऊपर मार्किंग, लिखी हुई चीज के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट चेक होती थी, हाथ से लिखे हुए आते थे। हाथ से लिखी हुई चीज जैसे आपके एसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, आपने लिखा है ना कुछ, वो प्रूफ रीड होगा। एडिटर का काम है काट छांट करना, जिसका ग्रामर सॉलिड हो वही कर सकता है। लैंग्वेज चेक करना, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो पर्टिकुलर ग्रामर आना चाहिए लैंग्वेज। तो हमारे पास यहाँ 3 बेसिक काम करते हैं हम एडिटिंग के अंदर, क्लासिकल एडिटिंग के अंदर, रिमूविंग एरर्स, दूसरा आ गया प्रूफ रीडिंग। बेसिकली प्रूफ रीडिंग मीन्स रिमूविंग एरर्स, pointing out the errors, then the errors will be removed, and polishing. Writing is a skill, it's an art, but more than these both things, it's a hard work. नहीं लग रहा आपको ऐसा? कितने स्टेजेस से होके हम निकल रहे हैं, हर जगह क्या ढूंढ रहे हैं, गलती कि कुछ रह ना जाए। You have to make it impersonal, you have to make it objective, you have to make it error free, it has to be free from emotive language, from cliches, from jargons. All these things will be done in these steps. बार बार यही करते जाते हैं एडिटिंग में, जैसे भी getting the content right, text is reviewed, revised, फिर से वही करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, पैराग्राफ चेक करते हैं, कोई एक्सीडेंटली मिस्टेक ना रह गई हो। तो माने कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेक, रिमूव करना है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें पीस ऑफ राइटिंग में जब ये फाइनलाइज होने वाली है, उससे पहले एरर पकड़। अब इसके जो चार्ट दे रखा है वो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ये वाला चार्ट, वहां से आपने करना, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें दिया हुआ है, ये वाला सिंबल है तो ये वाला एरर करना है, ये सिंबल है तो ये वाला एरर करना है। कई बार इसमें नोट लिखने को आ जाता है कि प्रूफ रीडिंग पे नोट लिखिए, तो आपको ये कुछ सिंबल आने चाहिए ताकि आप बता सकें कि ये सिंबल मैंने यूज किया किसके लिए, इस एरर पे। समझ गए? साथ में एग्जांपल दिया हुआ, तो चार्ट में ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया हुआ, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बेसिकली वी यूज सिंबल्स। और उस राइटिंग के अंदर जैसे यहाँ लिखा हुआ है कुछ, ये टाइप है, तो मैं वो निशान लगाता चलूंगा जल्दी से। कोई प्रूफ रीडिंग के मैसेज इसको तो चल जाए, हर पेज प्रूफ रीडिंग होती थी। राइटर्स मैसेज हमारे जैसे आप कहीं लग गए ना नौकरी, तो जो बेसिक नौकरी एक ग्रेजुएट को मिलती थी वो प्रूफ रीडर की मिल जाएगी कहीं। प्रूफ रीडर क्या करेगा, पेजेस पढ़ेगा और गलतियां निकालेगा। तो जो अच्छा प्रूफ रीडर होगा उसकी तो एक बार निकाली गलती कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रूफ रीडर भी ढीला होगा तो उससे गलती छूट जाएंगी, छूटेंगी ना। ये काम होता था पहले, अब तो प्रूफ रीडर्स कम हो गए हैं, इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर इज डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। राइटिंग इजी हो गई क्योंकि अब देखो टाइपिंग भी नहीं करनी, बोलते हैं वो टाइप कर देता है, कितना इजी हो गया। करेक्शन ऑटो करेक्ट आ गया, वो आपका ग्रामर भी चेक कर लेगा। कई बार तो ऐसे ऐसे सेंटेंस बना देता है, इंटेंशन भी नहीं थी आपकी ओरिजिनली, वो सेंटेंस बन के आ जाएगा। आप लिखना भी नहीं चाहते थे, वो वर्ड लिखा होगा, फिर मिटाना पड़ेगा उसको। तो प्रूफ रीडिंग तो फिर भी हम करते हैं, फिर भी कर रहे हैं ना। ये है कि कागज पे नहीं कर रहे, डिजिटली कर रहे हैं, या प्रिंट निकल के आता है फिर करते हैं। सो दैट इज प्रूफ। और पॉलिशिंग में बेसिकली क्या करेंगे, ये पॉलिश माने रिवीजन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट होगा, सेंटेंसेस या पैराग्राफ को रिवाइज कर लेंगे। यहां पे बेसिकली वी पे अटेंशन टू द वर्ड्स, देयर स्ट्रक्चर, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है, पॉलिश करते हैं, फाइनल टचेस। जैसे कोई हम लोग कोई चीज बनाए अगर हाथ से कुछ, जैसे कोई जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वाले भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फाइनल टचेस, पेंट वाला पेंट करके क्या देता है, फाइनल टच देना। मतलब फिर ढूंढ रहा है कोई गलती, तो छोटी छोटा मोटा दाग धब्बा, साफ सफाई, वो पॉलिशिंग है ना। तो तीनों ही स्टेप्स का पर्पस क्या है कि टोन, कंटेंट और जो हमारा स्टाइल है वो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एंड इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट टेक्स टाइम।
किताबें लिखने में कई कई साल लग जाते हैं, तो लिखने में चाहे 1 साल लग गया हो, ये सारी चीजें करने में भी 1 साल लग सकता है। लिखना और फिर उसको दोबारा मतलब पॉलिश करके फाइनल स्टेज तक लेके जाना, इट्स अ टीडियस वर्क, टेक्स टाइम। और एकेडमिक वाले में जब बुक पब्लिश करनी है, कोई सर्वे पब्लिश करना है, कोई रिपोर्ट पब्लिश करनी है, इट हैज एलिमेंट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी विद इट। रिस्पांसिबिलिटी होती है। न्यूज़पेपर में कोई ऐसी बड़ी खबर लगा देते हैं तो मजाक है, सारे देश ने खबर पढ़नी है, रिएक्शन। ऐसे किसी पैरों लिख देंगे ये बंदा ऐसा है, यही है ना। ये जो रिस्पांसिबिलिटी जुड़ी है, इसलिए ये राइटिंग वाली चीज, बिकॉज इट इज सीरियस ऑफ इट। ऐसा करते नहीं है कि आप ऐसे कर जाओगे, कोई कैजुअल चीज है। स्पोकन कैन बी कैजुअल, कि आपने बोल दिया, आप तो उसमें भी फंस जाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये आपने ये बयान दिया हुआ है, आया जाता है ना। तो दिस इज अ सीरियस। तो आपको ग्रुप में वो मिल जाएगा जिसमें डिटेल दिया हुआ है, और उसको आपने एक बार